लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स किया था। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स प्लस सी। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आएगा तो आंसर आएगा लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस सी। नाउ वी आर राइटिंग दिस इंपॉर्टेंट नोट। Whenever we want to integrate a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d or a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x, we first check whether numerator equal to derivative of denominator। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इफ नॉट देन एक्सप्रेस न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। We have to write numerator in terms of denominator and its derivative, where a and b are constants to be found. This we have to write. Remember this. Whenever we have these two type of problems, a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d, or a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x, जब भी ये दो में से एक टाइप का प्रॉब्लम आएगा, दिस इज गोइंग टू बी द टेक्निक। वी हैव टू कन्वर्ट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। वी आर डूइंग सब टाइप बी। लास्ट हमने प्रॉब्लम नंबर 8 किया था। अभी हम पहले प्रॉब्लम 15, 16, 17, 18 करेंगे। 15th, this is 4 e raised to x minus 25 upon 2 e raised to x minus 5. So this problem belongs to this category. First category. So what we check the derivative of denominator. Derivative of denominator will be 2 e raised to x, which is not equal to the numerator. Therefore we say numerator equal to a times the denominator plus b times the derivative of denominator. That is, what is the numerator? 4 e raised to x minus 25. A times, what is the denominator? 2 e raised to x minus 5. And b times 2 e raised to x. So 4 e raised to x minus 25 is equal to 2a e raised to x minus 5a plus 2b e raised to x. We take the terms in e raised to x together. ये e raised to x वाले दोनों terms को साथ में ले लेंगे and we remove e raised to x common and 2 also common. So 2 times a plus b into e raised to x minus 5a. Now we say, on comparing the corresponding coefficients, means we compare coefficient of e raised to x with
e raised to x, this coefficient of e raised to x with this coefficient, and the constant term with the constant term, similar to what we have done in 11th standard complex numbers. If a plus ib equal to c plus id, then we compare real part with the real part and imaginary part with the imaginary part. Alright, similar to that. Therefore क्या आएगा, 2 times a plus b equal to 4 and minus 5a is equal to minus 25. Minus 5a equal to minus 25. So a will be 5, and from here a plus b will be 2. यह वैल्यू ऑफ a डाल देंगे तो 5 plus b equal to 2 means b will become minus 3. I will now substitute these values of a and b here. So what will this value become? 4 e raised to x minus 25 is equal to, what is a? 5. So 5 times 2 e raised to x minus 5, and what is b? Minus 3. Minus 3 into 2 e raised to x. अब एक्चुअली ये ब्रैकेट को रीओपन करके कुछ फायदा नहीं है, इसको रीओपन करेंगे तो क्या आएगा? 10 e raised to x minus 25 minus 6 e raised to x. What is 10 minus 6? 4 e raised to x minus 25. तो ये ब्रैकेट रीओपन करेंगे तो यही एक्सप्रेशन वापस आएगा. मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो अलग नहीं है. The same expression written in two different ways. Therefore, we'll now divide both sides by 2 e raised to x minus 5. तो क्या आएगा? 4 e raised to x minus 25 divided by 2 e raised to x minus 5 is equal to 5 minus 3 into, अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 e raised to x minus 5 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे तो 5 बचेगा, और इधर 3 2 6 नहीं लिखेंगे, पर्पसली ऐसे ही लिखेंगे ना. अब ये एक्सप्रेशन जो है दैट इज दिस एक्सप्रेशन, दिस इज ऑफ द टाइप u अपॉन v, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है. तो ये जो u अपॉन v है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ टू इंटीग्रेबल टर्म्स. बीच में माइनस साइन है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट होगा. दिस इज नाउ 5 का आएगा 5x 3 टाइम्स log ऑफ ये कौन से फॉर्म में है? डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, तो ये वाला फॉर्मूला ब्रैकेट में लिखेंगे. सिंस इंटीग्रल f डैश x अपॉन fx dx is equal to log of fx plus c. You can use this formula for this type of problems. You can use this formula for this type of problems. So जब भी ये क्वेश्चन कौन से टाइप का है? a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d. So we have to check the derivative of the denominator. Denominator का derivative आएगा 2 e raised to x which is not equal to the numerator. So we write numerator equal to
a टाइम्स द डिनोमिनेटर, b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, फिर a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म के साथ, and we take the terms in e raised to x together and 2 common, 2 times a plus b into e raised to x minus 5a. Then we compare e raised to x का coefficient with e raised to x का coefficient and constant with constant, comparing the corresponding coefficients. क्या आएगा? 2 times a plus b equal to 4 and minus 5a equal to minus 25. यहाँ से a मिल जाएगा, वो वैल्यू ऑफ a को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, b मिल जाएगा, वो वैल्यूज को यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, a के बदले 5 और b के जगह पे -3, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा. देन वी विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 e raised to x minus 5. तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, स्प्लिट करने पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस एंड बीच में माइनस साइन है, ये नॉन इंटीग्रेबल के जगह पे ये करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेबल टर्म लिखेंगे. ये जो टर्म नॉन इंटीग्रेबल है उसकी जगह पे ये टर्म लिखेंगे, बीच में माइनस है, ये माइनस की वजह से दो इंटीग्रल में स्प्लिट होगा. ये कौन से फॉर्म में है? f डैश x अपॉन एफ एक्स. लास्ट टाइम 2-3 सम में यूज किया था. f डैश x अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रल होगा log fx. जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर होगा तो आंसर आएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर. Sixteenth. Sixteenth. 3 e raised to 2x plus 5 upon 4 e raised to 2x minus 5. Slight variation है. Instead of e raised to x, we are having e raised to 2x. Method remains the same. Again, we check the derivative of denominator. 4 will remain as it is. 2 e raised to 2x minus 0. तो आएगा 8 e raised to 2x. डेरिवेटिव आएगा 8 e raised to 2x, which is obviously not equal to the numerator. Therefore, we say let numerator equal to a times the denominator plus b times the derivative of denominator. Therefore, 3 e raised to 2x plus 5, a times, what is the denominator? 4 e raised to 2x minus 5, and b times derivative of denominator is 8 e raised to 2x. This will become, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा? 4a e raised to 2x minus 5a plus 8b e raised to 2x. We can take these two terms together. ये दोनों टर्म्स को साथ में ले लेंगे तो आएगा and take 4a plus 8b times, in fact 4 भी कॉमन ले सकते हैं, so 4 times again we compare the corresponding coefficients. On comparing the corresponding coefficients, तो किसको कंपेयर करने का? कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट
एंड ई रेस टू 2x के साथ ई रेस टू 2x का कोएफिशिएंट, तो क्या आएगा 4 टाइम्स a प्लस 2b इक्वल टू 3 एंड माइनस 5a इक्वल टू 5. सो a इक्वल टू -1 और यहां पे क्या आएगा a प्लस 2b इक्वल टू 3/4. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो 2b विल बिकम 3/4 plus 1, that is 2b will become 7/4. So b will become 7/8. ये a और b का वैल्यूज को अब हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या आएगा ये वैल्यूज को यहां पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore 3e raised to 2x plus 5 is equal to, what is a? It is -1, so -1 times 4e raised to 2x minus 5, and what is b? 7/8 times and 8e raised to 2x. अभी दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 4e raised to 2x minus 5. ये जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 3e raised to 2x plus 5 upon 4e raised to 2x minus 5 is equal to -1 plus 7/8 into 8e raised to 2x. डिवाइडेड बाय प्लीज नोट, ये 8 और 8 कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने का, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमको एडजस्ट करना है. तो अब ये जो टर्म नॉन इंटीग्रेबल है, u अपॉन v टाइप का है, नॉन इंटीग्रेबल, उसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेबल. सो दिस integral I will become -1 plus 7/8 8e raised to 2x upon 4e raised to 2x minus 5 dx. ये जो नॉन इंटीग्रेबल टर्म है उसके जगह पे ये इंटीग्रेबल टर्म लिखेंगे, तो आएगा -1 dx 7/8 will come out and 8e raised to 2x upon, अब ये कौन से फॉर्म में आ गया? दिस इज नाउ f डैश x अपॉन एफ एक्स. सो क्या होगा इंटीग्रेशन? -1 का आएगा -x एंड 7/8 टाइम्स log ऑफ ब्रैकेट में भी राइट द फॉर्मूला भी अप्लाई. सिंस इंटीग्रल f डैश x अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू log एफ एक्स प्लस सी. जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा, आंसर आएगा log ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस सी. ये 16th क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना है. Similar to the last problem, सिर्फ यहाँ पे instead of e raised to x we have e raised to 2x. Method remains the same. ये e raised to 2x जो है that is like e raised to u, तो e raised to u du by dx, तो 2 e raised to 2x आएगा.
17th. Seventeenth. Seventeenth is also important. Two cos x plus sin x upon 4 cos x plus 3 sin x dx. Again, this problem is like a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x. न्यूमरेटर में cos x sin x, डिनोमिनेटर में भी cos x sin x. सो वी चेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. क्या होगा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव? -4 sin x plus 3 cos x, which is not equal to the numerator. I will now say therefore let numerator equal to a times the denominator plus b times the derivative of denominator. Therefore 2 cos x plus sin x will become a times, what is the denominator? 4 cos x plus 3 sin x, and b times, what is the derivative of denominator? -4 sin x plus 3 cos x. Therefore अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे cos x वाले टर्म्स को. तो यहां से आएगा 4a cos x और यहां से आएगा 3b cos x. सो 4a plus 3b cos x. cos x वाले टर्म्स को साथ में लेके cos x कॉमन ले लेंगे और sin x वाले टर्म्स को साथ में लेके sin x कॉमन ले लेंगे. तो क्या होगा? 3a sin x तो आएगा 3a minus 4b times sin x. Now we'll compare. On comparing the corresponding coefficients, we compare cos x का coefficient with cos x and sin x का coefficient with sin x. What is the coefficient of cos x? 4a plus 3b equal to 2. This will be our equation 1. And 3a minus 4b equal to 1. That will be equation 2. अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे. जैसे ही इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे हमको a और b का वैल्यूज मिल जाएगा. ऑलराइट, सो व्हाट वी डू इज, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 4 times equation 1 plus 3 times equation 2 gives, तो 4 times 4a plus 3b, ये लेफ्ट हैंड साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड को 4 से, सो 4 इंटू 2 एंड 3 इंटू 1. ये लेफ्ट हैंड साइड को 4 से और ये राइट हैंड साइड को भी 4 से, ये लेफ्ट हैंड साइड को 3 से और ये लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से. तो अभी ब्रैकेट ओपन करो, क्या आएगा? 16a प्लस 12b प्लस 9a माइनस 12b इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 प्लस 3
सो 12b एंड माइनस 12b कैंसिल, तो आएगा 25a इज इक्वल टू 11. सो वैल्यू ऑफ a आएगा 11 अपॉन 25. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग a is equal to 11 by 25 in equation 1. तो अब क्या आएगा 44 by 25 plus 3b equal to 2. इधर a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 11 by 25. सो 4 11 सा 44 हो जाएगा. सो नाउ क्या होगा 3b is equal to 2 minus 44 upon 25. ये प्लस का माइनस हो जाएगा. सो 3b is equal to 50 minus 44, 6 upon 25. तो वैल्यू ऑफ b आएगा 2 upon 25. ये जो वैल्यूज है उनको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये वैल्यूज को यहां पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore 2 cos x plus sin x is equal to, what is a? A is 11 by 25 times 4 cos x plus 3 sin x, and value of b is 2 by 25 times minus 4 sin x प्लस 3 cos x. ये वैल्यू को यहां पे रीसब्स्टिट्यूट कर दिया. ये a के जगह पे लिखा 11 by 25 और b के जगह पे लिखा 2 by 25. अब ये जो नाउ आइदर वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स बाय, what is the denominator? 4 cos x plus 3 sin x. तो क्या आएगा 2 cos x plus sin x divided by 4 cos x plus 3 sin x will become, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 11 by 25 plus 2 by 25 times minus 4 sin x plus 3 cos x. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 4 cos x प्लस 3 sin x. जब ये टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन में से, ये पहले एक्सप्रेशन में से इधर इसके नीचे आएगा, इधर ये टर्म के नीचे भी आएगा तो वो कैंसिल होके 11 by 25 और इसके नीचे आएगा. अगेन ये एक्सप्रेशन जो है दिस इज u अपॉन v टाइप. ये नॉन इंटीग्रेबल है, वो नॉन इंटीग्रेबल के जगह पे ये इंटीग्रेबल टर्म से रिप्लेस कर देंगे. सो व्हाट विल I बिकम 11 by 25 plus 2 by 25 times minus 4 sin x plus 3 cos x upon 4 cos x plus 3 sin x dx. ये जो नॉन इंटीग्रेबल टर्म है दैट इज दिस, उसके जगह पे ये टर्म लिख देंगे. ये नॉन इंटीग्रेबल टर्म है दैट इज दिस. अब ये टर्म के बदले ये टर्म लिखा है हमने सिर्फ. दिस इज नाउ क्या होगा
11 by 25 dx. 2 by 25 we can take outside, and minus 4 sin x plus 3 cos x upon 4 cos x plus 3 sin x. Again, ये कौन से फॉर्म में आ गया? This is f dash x upon fx. This expression is so log of the denominator हो जाएगा. So it will become 11 by 25 times x and 2 by 25 times log of 4 cos x plus ब्रैकेट में नीचे फॉर्मूला लिखेंगे. This problem is given solved. This is a solved problem. Seventeenth. Now we come to 18th. Eighteenth is also similar type of question only. ये सब questions जो हैं, ये 17th, 18th, they can be asked for 4 marks. This is a 4 marks question. This is a 4 marks question. जो हमने प्रॉब्लम 16 and 15 and 16 किया, they were 3 marks. And this is 4 marks. This is a problem worth 4 marks. This is 4 marks question. Even the 18th is also 4 marks question. Similar question, slight variation in the question. 1 upon 2 plus 3 tan x. अब हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये फॉर्म में होना चाहिए, a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x. अब ये जो एक्सप्रेशन है वो ये फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, then we'll find out the values of a and b. This is now question 18. 18th is also important. 18th is also important. क्या किया, ये tan को sin अपॉन cos लिखा, तो LCM लेंगे तो न्यूमरेटर में cos x आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 cos x plus 3 sin x हो जाएगा. Agreed? Therefore integral I will become अब ये जो न्यूमरेटर का cos x है ना, that we can write it this way. ये cos x के बदले लिख सकते हैं 1 cos x plus 0 sin x. सो अब ये फॉर्म में आ गया a cos x plus b sin x upon c cos x plus d sin x. So now the method remains the same. We'll say let check the derivative of denominator. What is denominator का derivative? It is minus 2 sin x plus 3 cos x, which is obviously not equal to the numerator. I will now say let numerator equal to a times the denominator plus b times the derivative of denominator. तो क्या होगा,
Numerator is cos x. A times, what is the denominator? 2 cos x plus 3 sin x. And b times, what is the derivative? Minus 2 sin x plus 3 cos x. Therefore, ये cos x को हम लिखेंगे 1 cos x plus 0 sin x. ये cos x के बदले लिखेंगे 1 cos x plus 0 sin x. अब इधर we take the terms in cos x together. 2a cos x and 3b cos x. तो आएगा 2a plus 3b cos x. And we take the terms in sin x together. sin x वाले टर्म्स को साथ में ले लेंगे तो आएगा 3a sin x minus 2b sin x. That is 3a minus 2b times sin x. Again, on comparing the corresponding coefficients, क्या मिलेगा? 2a plus 3b is equal to 1 and 3a minus 2b is equal to 0. अब इसको सॉल्व कर देंगे. अगेन क्या करेंगे? 2 times equation 1 plus 3 times equation 2 gives, तो क्या आएगा? 2 times 2a plus 3b and 3 times 3a minus 2b equal to 2 times 1 and 3 times 0. अब क्या आएगा? 4a plus 6b, इधर आएगा 9a minus 6b is equal to 2 plus 0. 6b minus 6b कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 13a is equal to 2. So value of a आएगा 2 upon 13. We'll now substitute a equal to 2 upon 13 in equation 2. इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा? ये वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आएगा? 3 times 2 by 13 minus 2b is equal to 0. So minus 2b is equal to minus 6 upon 13. So value of b आएगा 3 upon 13. अब ये जो वैल्यूज है उनको यहां पे रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. Therefore cos x will become 2 by 13 times value of a is 2 by 13 ब्रैकेट में 2 cos x plus 3 sin x and 3 by 13 times ये b का वैल्यू 3 by 13 है minus 2 sin x plus 3 cos x. अब डिवाइड कर देंगे. We divide both sides by 2 cos x plus 3 sin x. तो क्या आएगा? cos x upon 2 cos x plus 3 sin x will become 2 by 13 and 3 by 13 times
सो ये जो क्वांटिटी जो नॉन इंटीग्रेबल था, ये नॉन इंटीग्रेबल क्वांटिटी को, दैट इज दिस टर्म, वी आर नाउ रिप्लेसिंग बाय एन इंटीग्रेबल टर्म. दिस इज u अपॉन v. ये u अपॉन v है. u अपॉन v का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसके जगह पे ये लिखेंगे 2/13 प्लस 3/13 टाइम्स माइनस 2 sin x प्लस 3 cos x divided by 2 cos x plus 3 sin x dx. बीच में प्लस है तो दो इंटीग्रल में स्प्लिट होगा. This will become 2/13 times x, 3/13 times log of the denominator. This is again bracket में we mention the formula f dash x upon fx log fx plus c. Now we are doing problems based on formulas of tan x, cot x, sec x and cosec x. Problem based on formulas of tan x, cot x, sec x and cosec x. We now know the formula for integration of tan x.
tan x का इंटीग्रेशन है log mod sec x। ये चारों फॉर्मूला हमने पहले भी लिखा हुआ है हमारे फॉर्मूला लिस्ट का, फॉर्मूला 21 to 24। tan x का इंटीग्रेशन है log mod sec x, cot x का इंटीग्रेशन है log mod sin x, sec x का इंटीग्रेशन है log mod sec x plus tan x, एंड cosec x का इंटीग्रेशन है log mod cosec x minus cot x। ये चार फॉर्मूला हमने देखा था, इसका दो अलग ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है, log tan pi by 4 plus x by 2, और यहां पे log tan x by 2। और हमने ये नोट भी लिखा है कि अगर fx का इंटीग्रेशन gx है देन f ऑफ ax प्लस b होगा, तो आंसर आएगा 1 अपॉन a g ऑफ। क्वेश्चन में अगर x के जगह पे ax प्लस b आएगा तो आंसर में भी x के जगह पे ax प्लस b आएगा, बट वी हैव टू डिवाइड बाय a, 1 अपॉन a। तो ये tan x का tan ax प्लस b किया तो log sec x के बदले log sec ax प्लस b आएगा, एंड आगे डिवाइड बाय a। cot x का log sin x है तो cot ax प्लस b का 1 अपॉन a log sin ax प्लस b। sec x का log sec x प्लस tan x है तो sec ax प्लस b का 1 अपॉन a log sec ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b। cosec x का log cosec x माइनस cot x, तो cosec ax प्लस b का 1 अपॉन a log cosec ax प्लस b माइनस cot ax प्लस b। इसमें ये दूसरे फॉर्मूला भी चेंज करना है तो सिर्फ x के जगह पे ax प्लस b आ जाएगा, x के जगह पे ax प्लस b। फॉर एग्जाम्पल tan 2x प्लस 3 तो आएगा 1/2 log sec sec 3x माइनस 5 तो आएगा 1/3 log sec 3x माइनस 5 प्लस tan याद होगा तो जब ये फॉर्मूला बोला था तभी बोला था कि tan cot sec cosec चारों का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log से स्टार्ट होता है, tan x cot x sec x cosec x। ये सेम फॉर्मूला है, सिर्फ x के जगह पे ax प्लस b है, यहाँ पे x के जगह पे 2x प्लस 3 है। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x 2, तो दैट इज वाई डिवाइड बाई 2। इधर कोएफिशिएंट ऑफ x 3 तो डिवाइड बाई 3। Now we come to question number 9. Ninth, cot root x upon root x. This is not cot x. This is not cot ax plus b also. ये composite function है. Cot u where u is equal to root x. Composite function का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है तो जो u होगा उसको t लिखेंगे, सो रूट एक्स को t लिखेंगे। हमारा जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो कब करेंगे फॉलो। विल नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। यहां पे प्रेजेंट है dx अपॉन रूट एक्स, वैल्यू आएगा 2 dt।
क्या होगा, इंटीग्रल आई कॉट टी, ये रूट एक्स के बदले टी आ जाएगा, एंड dx अपॉन रूट एक्स का वैल्यू 2dt बन जाएगा। ये dx अपॉन रूट एक्स का वैल्यू 2dt बन जाएगा। ये 2 को बाहर ले लेंगे, एन इंटीग्रल cot t dt, क्या फॉर्मूला है cot x का, log sin x, तो cot t का आएगा log sin t, 2 times log sin t plus c, and back substituting क्या होगा, क्वेश्चन 10, क्या दिया है डेटा, e raised to x 1 plus x upon cos x e raised to x, this is, ये cos को न्यूमरेटर में ले लेंगे तो बनेगा sec x e raised to x 1 plus x dx, this is now not sec x but sec u, ये sec x नहीं है, sec ax plus b भी नहीं है, this is sec u where u is equal to x e raised to x, so we'll put x e raised to x equal to t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, दिस इज u इंटू v, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल, तो क्या होगा, x as it is derivative of e raised to x and e raised to x as it is derivative of x is equal to dt by dx, that is x e raised to x into 1, e raised to x कॉमन, ब्रैकेट में x plus 1 dx is equal to dt, तो क्या बनेगा, इंटीग्रल आई, ये sec as it is रहेगा, x e raised to x के बदले t आएगा, और ये जो पूरा क्वांटिटी है e raised to x 1 plus x dx will become dt, क्या फॉर्मूला है sec x का, log sec x plus tan x, तो इसमें आएगा log sec t plus tan t plus c, and back substituting तो आएगा log sec x e raised to x plus tan x e raised to x plus c, these are all 2 marks question, 9, 10, 11 they are 2 marks question, 11th I am marking as important, 11th the data is this is given solved also, ये साइन को ऊपर ले लेंगे तो कोसेक बन जाएगा, ये दोनों टर्म को साथ में ले लिया, ये x और 1 प्लस x को साथ में ले लिया, और ये साइन को ऊपर ले लिया तो कोसेक बन जाएगा, दिस इज नॉट कोसेक x, दिस इज कोसेक u, वेयर u is x plus log x, so log x को x u को t लिखेंगे,
यानी कि x प्लस लॉग एक्स को t लिखेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एलसीएम लो, क्या आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, दैट इज x plus 1 upon x dx will become dt. तो ये जो पूरा क्वांटिटी है ये dt बन जाएगा, तो बनेगा इंटीग्रल कोसेक t dt। कोसेक t का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ cosec t minus cot t plus c and back substituting आंसर आएगा log cosec x plus log x minus cot x plus log x plus c। ये 11th को इंपॉर्टेंट मार्क किया है हमने। ये याद रखेंगे, टू इंटीग्रेट साइन अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन कॉस, 4 टाइप का प्रॉब्लम, साइन अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन कॉस। यू हैव टू यूज आम, ये आम का सीजन है तो आम को याद करेंगे, यूज आम। आम का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म है एंगल एडजस्टमेंट मेथड। एंगल एडजस्टमेंट मेथड, यू हैव टू यूज आर्म, एंगल एडजस्टमेंट मेथड। व्हाट इज एंगल एडजस्टमेंट मेथड? जो भी एंगल डिनोमिनेटर में होगा वही एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट करने का विदाउट चेंजिंग द न्यूमरेटर। ये कब यूज करने का? प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। न्यूमरेटर में जो भी एंगल होगा और डिनोमिनेटर में जो भी एंगल होगा उसका जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम होना चाहिए, तब ये यूज करेंगे एंगल एडजस्टमेंट मेथड। नंबर 12, नंबर 12, cos x upon sin x minus a, cos x upon sin x minus a। अब
ये लास्ट टाइप का है, ये सेकेंड टाइप का है, कॉस अपॉन साइन। न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, सो हियर वी हैव टू यूज एंगल एडजस्टमेंट मेथड। बाजू में आम करके लिखेंगे एंगल एडजस्टमेंट मेथड। अगेन ये प्रॉब्लम u अपॉन v टाइप का है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है, सो वी कंसिडर डिनोमिनेटर में क्या एंगल है, x माइनस ए, तो न्यूमरेटर में भी x माइनस ए एडजस्ट करेंगे। न्यूमरेटर में ऑलरेडी x है, न्यूमरेटर में ऑलरेडी x है, हमको चाहिए x माइनस ए, सो वी एड ए एंड सब्ट्रैक्ट ए, एड एंड सब्ट्रैक्ट ए। अब ये न्यूमरेटर जो है दैट इज लाइक अ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। दिस न्यूमरेटर इज नाउ लाइक कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्या फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। अब इसको कर देंगे स्प्लिट, तो क्या होगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए विल बिकम, क्या होगा वैल्यू, कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए एज इट इज रखा, एंड tan एक्स माइनस ए। बेसिकली ये u अपॉन v फॉर्म का है, बेसिकली ये u अपॉन v फॉर्म का है जिसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो ये जो डिवीजन फॉर्म में है उसको सब्ट्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज नाउ ये जो टर्म है, ये जो टर्म है दैट इज दिस, उसके बदले ये लिख दिया यहां पे। नाउ हियर दीज टू टर्म्स आर कांस्टेंट्स, हियर वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये dx का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू x, ये dx का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब वेरिएबल इज x, वेरिएबल इज x। तो ये जो टर्म है दोनों में x नहीं है, तो दे आर कॉन्स्टेंट्स। तो cos A will get integral cos A dx and sin A will come out and tan x minus A dx। ये sin A कांस्टेंट को बाहर ले लिया, दिस इज अगेन k। क्या होगा k का इंटीग्रेशन, k का इंटीग्रेशन होगा kx, तो cos A का इंटीग्रेशन होगा cos A इंटू x। ये tan ax प्लस b टाइप का है, कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 आएगा, एंड tan का फॉर्मूला है log sec, तो आंसर आएगा x cos A माइनस साइन A टाइम्स log sec ये एंगल एडजस्टमेंट मेथड कब यूज करने का, एंगल एडजस्टमेंट मेथड जब भी ये चार टाइप का प्रॉब्लम आएगा, साइन अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन,
साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन कॉस, तब यूज करने का एंगल एडजस्टमेंट मेथड, प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ x सेम होना चाहिए। इधर क्या है, x का कोएफिशिएंट 1, इधर भी 1, तो क्या करने का, एंगल एडजस्टमेंट, मतलब जो भी एंगल डिनोमिनेटर में होगा वही एंगल न्यूमरेटर में लाने का। डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस ए, तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी x है तो वो एज इट इज रखा। x माइनस ए लाने के लिए विल एड ए एंड सब्ट्रैक्ट ए, दिस इज नाउ cos अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला आएगा cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, देन स्प्लिट, तो एक में cos कैंसिल हो जाएगा, दूसरे में sin अपॉन cos tan हो जाएगा। अब ये u अपॉन v टाइप का है, नॉन इंटीग्रेबल, उसके बदले ये इंटीग्रेबल टर्म लिख देंगे, ये दोनों कांस्टेंट है, cos a का इंटीग्रेशन होगा cos a इंटू एक्स, प्लीज नोट cos a का इंटीग्रेशन sin a नहीं होगा, cos a का इंटीग्रेशन sin a नहीं होगा, cos a इज अ कांस्टेंट, k का इंटीग्रेशन होता है k इंटू एक्स, तो cos a का होगा cos a इंटू एक्स, एंड ये sin a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड tan का log sec हो जाएगा। थर्टींथ, sin x माइनस ए अपॉन cos x प्लस बी। 13th को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, दिस इज अगेन sin अपॉन cos टाइप का क्वेश्चन, सो अगेन वी हैव टू यूज एंगल एडजस्टमेंट मेथड। 13th also we have to use angle adjustment method। तो अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व भी दिया हुआ है नोट्स में, अब क्या करेंगे, ये x और माइनस ए को सेपरेट कर दिया क्योंकि हमको x प्लस बी एडजस्ट करना है, तो बीच में b ऐड करेंगे और b सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये x और माइनस ए को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, हमको चाहिए x प्लस बी, तो विल ऐड b एंड सब्ट्रैक्ट b, सो दिस विल बिकम एंगल एडजस्टमेंट मेथड का मतलब है जो एंगल डिनोमिनेटर में होगा वही एंगल न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे। तो ये x प्लस बी एज इट इज रखा, ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो b प्लस ए आएगा। अब b प्लस ए लिखो या a प्लस बी लिखो, इट इज द सेम ओनली। दिस इज नाउ साइन अल्फा माइनस बीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो आएगा साइन एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस बी साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। इसको स्प्लिट कर देंगे, क्या आएगा, इसमें साइन अपॉन कॉस आएगा तो आएगा tan एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, एंड ये cos a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो आएगा sin a प्लस बी। दिस इज
the simplification of अब ये जो अगेन दिस इज u अपॉन v, तो ये जो टर्म है नॉन इंटीग्रेबल उसको दो इंटीग्रेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, सो इंटीग्रल I विल बिकम इसको मैं खाली रिवर्स में लिखूंगा, पहले कॉस वाला टर्म लिखूंगा फिर टैन लिखूंगा। अगेन हियर वेरिएबल इज x, तो ये जो दो टर्म है दे आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये दोनों टर्म ये cos a प्लस बी को बाहर ले लेंगे एंड tan x प्लस बी माइनस sin a प्लस बी, दिस इज अगेन k, क्या होगा इंटीग्रेशन cos a प्लस बी एज इट इज रहेगा, ये कोएफिशिएंट 1 है तो डिवाइड बाय 1 आएगा एंड log sec x प्लस बी एंड इसका माइनस x साइन a प्लस बी, k का k इंटू एक्स आएगा तो साइन a प्लस बी इंटू एक्स यानी कि x साइन a प्लस बी, दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट्स आज हमने पहले वो टाइप का प्रॉब्लम किया, न्यूमरेटर इक्वल टू a टाइम्स द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर हमने प्रॉब्लम्स किया यूजिंग फॉर्मूलाज ऑफ tan x, cot x, sec x एंड cosec x। अभी इसमें थोड़ा सा और बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके सब टाइप सी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, प्लीज कीप ऑन वर्किंग हार्ड, प्लीज डू द होमवर्क रेगुलरली, write the formulas regularly, all right? Your colleges are not going to begin before 15th of July, at least 15th of July, शायद 1st of August को भी start हो सकता है। So please keep on working hard, please do the hard work, all right? And revise whatever has been taught, all right? Thank you.